All right, so the world right now seems like it's just going at war. Right now, the whole world is at war, and I'm not talking Call of Duty, but every ongoing war in the world is exposed thanks to Guvar over here. And I just like the way the way the words flow out his mouth. Seemingly, a lot of you do as well. So I just want to दुनिया में see आज 100 the truth about what's going on, से भी ज्यादा देश हैं or maybe not even the truth, just a different perspective. Because it's one of the reasons why I started this channel was to be able to get perspectives from a global world and get global perspectives, as well as being able to communicate with people all around the world. And now I have a community on the other side of the world that at least gives me their perspective. Like, I give my perspective, and hopefully in a way that can be entertaining or funny at times, and not saying that my perspective is right. It's just my perspective. It's what I grow up based off the information that I have, and I know that there's stuff that I get, like some of my upbringing is probably definitely due to propaganda. And I'd like learning from you guys, being able to point out the different truth of, like, no, that's what your American government says. This is this is the reality, and this is what happened, and then vice versa. You know, like, you guys think some stuff happened or some things happened. I'm like, maybe not so much. हैं जो किसी ना किसी दूसरे देश के साथ कोई ना कोई जंग में शामिल है। क्या आपको ये बात पता है? कैसे पता होगी? आखिर वेस्टर्न मीडिया की नजरें तो सिर्फ रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन वॉर पर ही अटकी रहती है। Israel. So with these wars too, I think it ultimately comes down to two things. I think it comes down to either money, right? Like some regimes are getting over and they want control of the money, or ultimately it's not even money but power, right? And then resources. Maybe I should say that with what's going on in Ukraine and Russia, it feels like a thing of resources, as well as just like Russia consistently being told, hey, we're not going to do certain things, and certain things continuously get done. So they have to kind of retaliate. And the other version is power. Like these governments, like in Syria, once the government gets out, there's a vacuum of, power. It has to be filled. Israel Has carried out what appears to be its deadliest attack yet. Russia is carrying out a massive aerial attack on the country. Dozens of drones and cruise missiles have been launched. ये मैप जरा देखना, जितने भी एरियाज रेड में मार्क्ड है, ये सारे एरियाज हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहां पर या तो कोई ना कोई You're वॉर telling me the whole country of Africa is a high conflict zone? या फिर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आज के तारीख में भी चालू है, बट इनकी बात कोई नहीं कर रहा। आज के यूनाइटेड नेशंस वाले पीसफुल मॉडर्न वर्ल्ड में 100 देश किसी ना किसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 100 देश, जो फिगर बाय द वे दोनों वर्ल्ड वॉर्स के कंबाइंड फिगर से भी ज्यादा है। वर्ल्ड वॉर 1 में 30 देश लड़ रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 में 50 देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की, इन वॉर Lo just peeked her head and she said, Africa's a continent. You dumb fuck. She didn't say the last part. टोन कंट्रीज Yell it though. Earlier before I didn't hear a response. I go, में से कई नाम सुनकर आपको तो यकीन भी नहीं होगा कि इस कंट्री में भी वॉर चालू है। जैसे खुद अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही कई वॉर्स चालू है, बट अमेरिका ने तो ये मुद्दा फॉर सम रीजन आज तक कभी नहीं उठाया पब्लिकली। आई मीन, चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? इनफैक्ट जब मैं इजराइल पैलेस्टीन वॉर पर स्टडी कर रहा था, तभी मुझे एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन एजेंसी ACLED इंस्टीट्यूट और एक इंडिपेंडेंट यूरोपियन इंस्टीट्यूट जेनीवा एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का ये रिपोर्ट मिला। इस रिपोर्ट में इन्होंने ना पूरे दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज का एक मैप इशू किया था। So look at that. The whole continent of Africa is basically just a high conflict zone. इसमें उन्होंने वॉर्स की इंटेंसिटी के हिसाब से कंट्रीज को ऑरेंज से लेकर रेड शेड में मार्क किया था। और इसमें भी अगर आप देखोगे Oh, that's funny. तो इजराइल और पैलेस्टीन और रशिया यूक्रेन के अलावा भी देखो आज दुनिया में क्या हाल है। सो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक बेहतर फंडामेंटल I'm sorry, I just have to point this out. I really like this shirt. I would wear this shirt. अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम इस मैप के डार्क रेड एरियाज के टेंशन और तनाव के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज आर एरियाज विद रियली इंटेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस विद जूमिंग आउट ऑन द मैप, और हम फोकस करते हैं सबसे पहले अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट ही, जैसे आप देख सकते हो, आपको रेड के शेड्स में ही मार्क दिखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आप दुनिया की कोई भी कंट्री ले लो, मोस्टली सभी कंट्रीज के बॉर्डर्स ना आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े ही दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज के ही बॉर्डर्स ऐसे स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसे खींचे हुए क्यों दिखाई देते हैं? दूसरी बात,
इस कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट हर एक नेशन में आज मैसिव इंस्टेबिलिटी है। 54 अफ्रीकन कंट्रीज में से 15 देश में आज तक वॉर्स लड़े जा रहे हैं। 10 देशों में एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री कूज होते रहते हैं। आज अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। And just like with India, you know what blows my mind is with Africa, you look back at its history and we look at Egypt. Egypt seemingly, from my POV, had one of the most advanced civilizations in the entire world with the pyramids and the Sphinx and its history. And now look at it, it's a place that's been looted and ransacked and basically ran by thugs and warlords, and it's tragic to see because this country, I know it has to have some kind of Wakanda-esque background, and I'm saying that lightheartedly, but there has to be some truth to that, right? Like, वहां के 22 देश तो दुनिया के सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में आते हैं। आप मैप में देख सकते हो, ये सारे देशों में तो भूखमरी छाई हुई। सो आखिर ऐसा क्यों है? Why is Africa so poor? Well, अफ्रीका के इन दोनों भी प्रॉब्लम्स का जन्म ना एक ही दौर से हुआ, 19th सेंचुरी। ये वो दौर था जब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर 7 यूरोपियन पावर्स राज कर रहे थे, और इसीलिए इन सातों you're telling me Britain came in and ransacked and tried to make it a better place with its way of thinking, and in fact, they kind of ruined that continent as well? Can we all look at Britain and just say Britain sucks? They maybe don't have things right? देशों में अफ्रीका पर अपना वर्चस्व बनाने को लेकर काफी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन ताकि इंटरनल झगड़े वॉर्स में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए 1884 में जर्मनी के लीडर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884। इस कॉन्फ्रेंस का सोल एजेंडा सिर्फ एक ही था, अफ्रीका को काट कर सब में बांटना। इसमें इन यूरोपियंस ने लिटरली अफ्रीका का मैप लिया और बिना वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी समझे, बिना एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किए, बिना कोई पास्ट हिस्टोरिकल और सेंटिमेंटल टेरिटरीज को कंसिडर किए, इन्होंने मैप में स्केल से सीधी सीधी लकीरें खींचकर ऐसे बांटना शुरू कर दिया जैसे उनके बाप दादा की जमीन हो। यूके के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड सैलिसबरी ने तो ओपन I was actually kind of curious on why Africa is split up the way that it is. I thought it was because of, you know, those reasons of ethnicity, importance, you know, density, all of that. Nope. Just people drawing up on a thing and like, okay, how can we split this up amongst us and where's going to be the most profitable area? ये तक कह दिया था कि हम लिटरली एक दूसरे को पहाड़, नदियां और तालाब ऐसे बांट रहे थे जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें नहीं पता थी। हमने कभी वहां पर अपने पैर भी नहीं रखे थे। It's so frustrating because we have people like this back in the day who could so clearly see that this is not the right way to go, yet consistently people like Lord Salisbury are not ever taken seriously, or at least never get to be in position of control to make sure that this doesn't happen. एक दिन तो बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड II ने जर्मनी और फ्रांस के बीच में चल रहे एक झगड़े को सुलझा दिया। इस बात के लिए उनको कॉन्गो का पूरा देश ही एज अ गिफ्ट दे दिया गया था। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज के मैप में अफ्रीका के कई कंट्रीज की बॉर्डर्स एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई देती है, जैसे किसी ने बैठ के उसे स्केल से ही ड्रॉ कर दिया हो, क्योंकि यही एग्जैक्टली हुआ था। और इसीलिए क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट को एकदम अंधाधुंध डिवाइड कर दिया गया, आज ऑलमोस्ट हर एक अफ्रीकन देश एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया बन चुका है। अब वो कैसे, ये मैं कुछ ही समय में आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर हम वॉर जोन के इसी मैप पर वापस आए तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कई वेस्टर्न कंट्रीज, जिसकी यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, तो इसमें ग्रे कलर में मार्क्ड है, क्योंकि यहाँ पर काफी पॉलिटिकल और रिजल्टेंटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और इसीलिए ही तो कई इंडियंस हायर स्टडीज के लिए इन्हीं कंट्रीज में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबल कंट्रीज के अब्रॉड डिग्रीज की जॉब मार्केट में काफी अच्छी वैल्यू है। सो अगर आप भी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, बट आप श्योर नहीं हो कि कौन से यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स आपके लिए सही New t-shirt. I would also wear this one. रहेगा, तो इसमें आपकी मदद कर सकता है लेवरेज एड्यू। लेवरेज एड्यू इंडिया की लीडिंग स्टडी अब्रॉड कंपनी है, जिनके 850 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी पार्टनर्स है अक्रॉस ऑल कंट्रीज। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको कंट्री स्पेसिफिक, बहुत ही पर्सनलाइज्ड Curious because over here in the West, going to universities now may not be seen as such a good thing because they're overpriced. Education and knowledge is, you know, fundamentally priceless, right? But you can get the same knowledge now on YouTube by talking to people like me, you, and just not, I shouldn't say me and you because we're not the educators on here, but you can go online, take courses from masters in neurology,
doctorates, all these different things, right? And you can get like a proper education, unless you're trying to be like a legitimate neurosurgeon, maybe a doctor. Maybe I'm not bringing up the best examples, but what is your viewpoint on studying and studying abroad and like this kind of ad? Do you guys find it useful? Or are you guys kind of doing like alternative education as well? Our education system sucks, so we don't do it right. That's why I feel like going online and almost self-educating yourself nowadays is more efficient, at least, than going to school and getting in, you know, a few lakhs of debt. एंड टू एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये आपके टेस्ट के लिए लैंग्वेज प्रिपरेशन से लेकर एकोमोडेशन और इवन फाइनेंसेस तक में आपकी हेल्प करते हैं। लेवरेज एड्यू के साथ अब तक 45,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में अपना ड्रीम करियर बिल्ड कर भी लिया है। एंड नाउ यू कैन बी द नेक्स्ट वन टू। लेवरेज एड्यू की सारी स्टडी अब्रॉड सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करने वाले 500 स्टूडेंट्स को फ्री आइल्स प्रेप वर्थ ₹15,000 भी दे रहे हैं ये लोग। बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लेवरेज एड्यू के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। और अब वापस लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे, क्योंकि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एकदम अंधाधुंध डिवाइड कर दिया गया था, आज ऑलमोस्ट हर एक अफ्रीकन देश एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया बन चुका है। अब जब तक यूरोपियन देश यहां पर राज कर रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, बिकॉज बॉर्डर्स के बीच में मूवमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और इन यूरोपियन देशों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन जैसे ही सब देश आजाद हुए और उनके बॉर्डर्स पेंस हो गए, इससे इंपैक्ट ये हुआ कि रातों रात कई परिवार बिछड़ गए, दूसरे देश में चले गए। और ये सिर्फ कुछ हजार लोगों के साथ नहीं हुआ, आज अफ्रीका के करीब 400। It makes me wonder, is like how many generations until this can get fixed? Because this looks like something like Attack on Titan. Like I'm just looking for a wall over here, and them trying to be, you know, sheltered from like the colossal Titan and the armored Titan. से 500 मिलियन लोग, जो उनकी 40% पॉपुलेशन है, वो सब डिवाइड हो चुके थे। आप इमेजिन करो, हम इंडियंस के केस में तो जब इंडिया पाकिस्तान का ही बंटवारा हुआ था तो ही कितनी फैमिलीज बिछड़े और बेघर हो गए थे, मार काट हुई थी। अब ऐसा मंजर तो पूरे अफ्रीका भर में हुआ है और बस यही सबसे मेजर कारण है अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे वॉर्स का, क्योंकि कई अफ्रीकन देशों में एक एथनिसिटी के लोग अलग अलग बॉर्डरिंग नेशंस में रहते हैं, जिससे उन देशों के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर भयंकर सिविल वॉर्स होते रहते हैं। अब चलो इसे आपको मैं सूडान देश के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2003 में सूडान में जो दारफूर एथनिक, This is good because I have like a very like surface level understanding of this, so he can give me more context on this. Is beautiful. कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वो 21st सेंचुरी का सबसे पहला मास जेनोसाइड था, जिसे यूएन ने खुद दुनिया का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि इसमें वहां के डिक्टेटर ने सूडान के माइनॉरिटीज को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। Wow. एक्चुअली में ये कॉन्फ्लिक्ट सूडान के मुस्लिम डिक्टेटर उमर अल बशीर और वहां के माइनॉरिटीज फूर, जागावा और मैसलीत एथनिक ग्रुप्स के बीच में हुआ था, जिसमें इन माइनॉरिटीज का ये कहना था कि उमर के राज में वो सालों से मार्जिनलाइज रहे हैं और इसीलिए अब उन्हें अपने लिए एक नए देश की स्थापना करनी है। अब अपने इसी डिमांड को सरकार से पूरा करवाने के लिए इन ट्राइब्स ने सूडान लिबरेशन आर्मी खड़ी कर ली, जो हथियारों की मदद से आजादी लेना चाहते थे। Now, I know this is not supposed to be religious, but this is a Muslim guy who's oppressing and taking control over people, which seems to be par for the course. These people here, these minorities who have been marginalized for years and therefore want a new country for themselves, religiously, do they fall in line with the same religion, or is it like just culture and just not wanting to be oppressed? रेवोल्यूशनरीज थे। अब इसके रिटेलिएशन में उमर अल बशीर ने भी इस मूवमेंट को दबाने के लिए मुस्लिम मिलिशियाज, जिनका नाम जंजावीड था, उनकी मदद ले ली और इन्होंने मिलकर माइनॉरिटीज का ऐसा जेनोसाइड किया कि बस कुछ ही समय में सूडान के 3 लाख लोग मारे गए और 25 लाख लोग अपना घर छोड़ के वहां से भाग गए। इस लेवल का मैसेकर हुआ कि अंत में यूएन और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बीच में आना ही पड़ा। उन्होंने उमर अल बशीर के खिलाफ I mean, yeah, that's just too much death. Too much death. Human life is so precious. I don't care where it's at. Death, killing literally should be the last resort, yet people want to do it so fast. वारंट इशू किया और फिर सूडान में इलेक्शंस करवाए गए। अब इसके 2 आउटकम्स निकल कर आए। पहला, क्योंकि ये मैसेकर माइनॉरिटीज के खिलाफ हुआ था, तो बशीर को 68% जनता ने इस सब के बावजूद भी वापस देश का प्रेसिडेंट बना लिया। और दूसरा, आंदोलन कर रहे माइनॉरिटीज की भी जंग सफल हुई। उनकी डिमांड के मुताबिक 2011 में सूडान को ही डिवाइड करके उनके लिए एक नया देश साउथ सूडान बनाया गया।
अब एक नया देश तो जरूर बन गया, पर इसी के साथ एक नई प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की। इन दोनों भी देशों के बीचों बीच एक एरिया था, एबे रीजन नाम का, जिसको दोनों भी देश अपना क्लेम कर रहे थे। पर 2011 में जैसे ही ये कंट्रीज अलग हुए, बशीर गवर्नमेंट ने इस एबे रीजन में अपनी फोर्सेस भेजकर उसे इन्वेड कर लिया। इससे इस एरिया में रहने वाले कई हजारों लोगों को भागना पड़ा और ये एरिया आज तक हाईली अनस्टेबल है नतीजन। बट ये कोई इकलौता इलाका बिल्कुल नहीं है। आज तक सूडान साउथ सूडान पर टेरिटरीज को लेकर अटैक करते रहता है, जिसमें हर साल कई लोगों की जाने जा रही है, मेकिंग सूडान एन एक्सट्रीमली वॉर प्रोन कंट्री। और जैसे कि मैंने कहा था, सूडान का तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा था, बट अफ्रीका में सूडान के अलावा भी कई देशों में टेरिटरीज को लेकर वॉर्स चल रहे हैं। जैसे वेस्टर्न सहारा रीजन को लेकर मोरक्को और पॉलिसारियो फ्रंट में वॉर शुरू है, फिर एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स चालू है। ऐसे बहुत से देश है जिसका पूरा लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैं फ्लैश कर दूंगा। और साथ ही में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रेफरेंसेस डाल दूंगा विद ऑल द रिसर्च आर्टिकल्स एंड सोर्सेज यूज्ड टू मेक दिस वीडियो, ताकि अगर आप This is like a real I'm sorry, I'm not like a real YouTuber because I'm just commenting and just doing like my own little reactions and putting my 2 cents out in the world, but somebody like this who's bringing up good facts and like quoting and resources, everything linked down below, respect. को इंडिविजुअली भी रिसर्च करना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पर, तो आपके पास हमारे ओरिजिनल सोर्सेज होंगे। बट अफ्रीका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? कि यहाँ पर एक टाइप का नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप्स के वॉर्स चालू है। जैसे टेरिटरीज के अलावा भी कई देशों में डाइवर्स एथनिसिटीज के बेसिस पर भी एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनवाने की भी डिमांड्स उठ रही है और उसके लिए भी वॉर्स चालू है। Yeah, there's gonna be warlords, like fighting and positioning themselves to be the warlord there. Then there's gonna be other areas that are just doing it for pure like one person's already set up and just trying to control the money. It's all about money, power. इथियोपिया में फॉर एग्जांपल टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF टिग्रे एथनिसिटी के लोगों के लिए देश मांग रहे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मुस्लिम सेलेका रिबेल्स और क्रिश्चियन एंटी बलाका मिलिशियाज के बीच में वॉर चल रहा है। कैमरून में फ्रेंच स्पीकिंग वर्सेस इंग्लिश स्पीकर्स का एक वॉर चल रहा है। और फिर इसके अलावा ऑलमोस्ट पूरे ही अफ्रीका में And I know this is such a weird thing to me because over here in America we speak English. I mean, not very well, but it's our language. It seems like when there's a barrier to communication, it just makes things hard, right? And if someone's speaking French and someone's speaking English and they're just bitching about, what type of breakfast they like, all of a sudden it leads to an all-out war. Instead, it could have been just a simple conversation. Nowadays, I feel like that is becoming less and less prevalent because I can watch this video that's in Hindi, I believe, and I can read it with the the captions that are being auto-populated on YouTube. I'm sure it's not 100% right. It's like 80% right. That's why I'm not like criticizing or trying to like break down anything what it's saying. I'm just trying to like take it like it's water and just splash it on my face and kind of get the gist of what's going on. टेररिज्म का भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको लेकर भी वहां पर कई दशकों से वॉर शुरू है। अफ्रीका से ही अकेले करीब 7 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया है, जिन सब की एक ही डिमांड है, उन देशों में इस्लामिक रूल लाना। जैसे नाइजीरिया में बोको हराम, मैग्रेब रीजन में अलकायदा, साहेल रीजन में इस्लामिक स्टेट जो आईसिस का ही एक एक्सटेंशन है। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी फैला रहे। इनफैक्ट 2023 में दुनिया में हुए 20 सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक्स में से 13 तो अफ्रीकन देशों में ही हुए थे। इस सब के साथ अफ्रीका इज ऑल्सो पॉलिटिकली वेरी वेरी अनस्टेबल। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 13 सालों में 10 देशों में तो Africa is an unstable place politically. I think that's a fair statement. मिलिट्री कूच भी हो चुके हैं। इनफैक्ट सूडान के ही एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें तो पहले से इस देश में एथनिक और टेरिटोरियल वॉर्स चल रहे थे, ऊपर से वहां पर डिक्टेटरशिप भी आ गई, प्लस यहां पर कम से कम 2 मिलिट्री कूच भी हो चुके, यानी कि वहां पर कंप्लीट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही। इनफैक्ट आज तो वहां की हालत ऐसी हो गई है कि सूडान में 2 आर्मी यूनिट्स RSF और SAF पावर के लिए लड़ रहे आपस में, और नतीजा 2021 के बाद से अब तक वहां पर 5550 बार पॉलिटिकल वायलेंसेस हो चुके हैं, जिसमें 15,000 लोग अब तक मर चुके हैं, और जो लोग जिंदा भी है उनका हाल भी कुछ ऐसा है। और हाँ, साउथ सूडान भी अलग होकर ज्यादा खुश नहीं है, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो फाइनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बर्ड्स आई व्यू अगर ले तो जैसे मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर मेजरली 4 किस्म के वॉर्स एक्टिव है। एथनिक वॉर
Yep. टेरिटोरियल वॉर, रैडिकल टेररिज्म और मिलिट्री कूज, जिसकी So I pretty much hit the nail on the head with all of this, no? वजह से Except ही for maybe like ACLED radical terrorism. इंस्टीट्यूट के इस मैप में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सारे के सारे देश रेड में ही मार्क्ड है एज हाई वॉर इंटेंसिटी जोन्स। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले वॉर जोन की ओर, जो है मिडिल ईस्ट, जो आज ऑलमोस्ट To go to Africa real quick, I think the best solution for Africa is you're going to have one area where the government sets in, starts propping up businesses like McDonald's, like Walmart's, convenience stores, basic stuff like that. It has to be government owned and the government can hire people. Then it has to be able to give a position for the people within that company or a person within that company to buy the rights to that company, and then all the, you know, like a tax of the profits, or like set up some type of taxes, and that way the government continues to get a little bit of the money coming from that place that it propped up, because I think that would be fair. Maybe a higher tax rate than normal because the government did kind of prop that up, kind of have like a high tax area, but allow people to buy out the government, have ownership of that place, have pride in their community, and then allow that to kind of trickle outwards, right? Is that kind of crazy? I don't know. पूरा रीजन ही एक वॉर जोन। Now let's go to the Middle East. लेकिन इस रीजन के भी कई सारे फसाड की जड़ कॉलोनाइजर्स का यहाँ पर आकर यहाँ की शांति को भ्रष्ट करना है। एक्चुअली में पहले ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जिसमें ऑटोमन्स हार गए तो Yeah, the उनका Ottoman पूरा Empire. एम्पायर दो टुकड़ों में बढ़ गया। इसमें ये नॉर्दर्न पार्ट गया फ्रांस को और ये सदर्न पार्ट गया ब्रिटिशर्स को। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट यानी कि सीरिया की। आज ये इलाका जिस वजह से एक वॉर जोन बन चुका है, इसका Yeah, today Syria has become a war zone, and it's currently, I think its government, just like the one that was in power is now out, and there's a new one coming in. मेजर रीजन हमको बताया जाता है And I think the American deep state has something to do with it. इस्लामिक वॉर है, जो 2011 में शुरू हुआ था, पर ये आधी सच्चाई है। सीरिया के इस तबाही की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के बाद से शुरू हो गई थी। दरअसल ऑटोमन एम्पायर एक सुन्नी मुस्लिम एम्पायर था, और इसीलिए सीरिया में भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की थी, बट शिया मुस्लिम्स भी इस देश में रहते थे, जिनको ऑटोमन रूल में I was like, and in Muslims, you have two different kinds of Muslims. You have the Shia and the Sunni. Correct? बहुत ज्यादा परसिक्यूशन। Can someone give me like a very dumbed down version of the difference between the two? Because I have little to no info on the Islamic culture फेस करना or पड़ता। religion. और Excuse me. इसीलिए जैसे ही फ्रांस ने सीरिया को कॉलोनाइज कर लिया, शियाज ने फ्रेंच ऑफिसर से दोस्ती कर ली। अब ये तो हर एक इंपीरियलिस्ट कंट्री की स्ट्रैटेजी रही है, डिवाइड करके रूल करने की, और इसीलिए फ्रेंच ने ऑलमोस्ट सारे शियाज को फ्रेंच सीरियन आर्मी में ज्वाइन करवा लिया। और फिर इसके बाद 1963 में जब फ्रांस ने सीरिया को आजादी दे दी और फ्रेंच लोग चले गए, तब जाने से पहले फ्रांस ने किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को सीरिया हैंडओवर करने की जगह पर सीरियन आर्मी को ही देश पर राज करने छोड़ दिया। अब जाहिर है क्योंकि फ्रेंच आर्मी में काफी शिया मुस्लिम्स थे, इसीलिए फिर इस देश के पहले डिक्टेटर बन गए मिलिट्री ऑफिसर हफीज अल असाद, Got it. जो कि एक शिया मुस्लिम ही थे। अब ऑफ कोर्स इससे सीरिया की मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, बट उनकी आवाज को दबाने के लिए हफीज अल असाद ने कई मैसेकर्स करवाए। इनफैक्ट 1982 Yeah, like that's gonna really bring people to your cause. Just massacre people that disagree with you. Yeah. में तो उन्होंने एक हम्मा नाम की सिटी में, जहां पर सुन्नी मुस्लिम्स के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स रहा करते थे, उस सिटी पर ही उन्होंने बॉम्बिंग्स करके कई लोगों को मार डाला था, और यही सेम हालत वहां पर कई सालों तक चलती रही। शिया मुस्लिम डिक्टेटर ने अपनी सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी जनता पर कई सालों तक अटैक्स करवाए, उनका परसिक्यूशन किया। लेकिन जैसे ही 2010 आया तो इस दौर में पूरे मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, जब पूरे अरब वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप हटाकर डेमोक्रेसी की स्थापना करने को लेकर प्रोटेस्ट छिड़ गए। और तब 2011 में ये इतने सालों से दबा हुआ गुस्सा एक सिविल वॉर के रूप में फटकर बाहर निकला। वहां के जो परसिक्यूटेड सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप फ्री सीरिया आर्मी FSA बना लिया, जिसने डायरेक्टली गवर्नमेंट पर ही अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना, इस मोमेंट तक ये वॉर सिर्फ रिबेल वर्सेस सीरियन गवर्नमेंट ही था। You know, killing and death is never, you never want to see it. But when you
you have to be able to go back and at least understand from both sides why they're doing the things that they're doing, and it's just, are they justified in it? Sure. Is it right? No. लेकिन धीरे धीरे इसमें अब कई पार्टीज जुड़ते चले गए। जैसे अगस्त 2012 में इसमें अलकायदा इराक भी इन्वॉल्व हो गई। बेसिकली ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में जो अलकायदा बनाया था, AOI उसी का ही एक इराकी विंग था जो 2003 में अबू बकर अल बगदादी के लीडरशिप में इराक में बनी थी। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी वॉर को ज्वाइन कर लिया और सिर्फ 3 सालों में उन्होंने इराकी गवर्नमेंट और US फोर्सेस को अटैक करके इतने एरियाज को अपने कब्जे में ले भी लिया था। अब इसके रिटेलिएशन में असाड ने तो डायरेक्टली बैरल बॉम्ब्स, यानी कि वो केमिकल बॉम्ब्स जिनको वर्ल्ड वॉर्स के बाद बैन कर दिया था, वो बॉम्ब्स आम जनता पर बरसाना शुरू कर दिया। इसका इम्पैक्ट इतना डेडली था कि जब तक ये वॉर अपने पीक पर था तब हर साल कम से कम 60,000 लोग इस बॉम्ब से मारे जा रहे थे। अभी रिसेंटली भी 2017 में भी न्यूज़ आई थी कि असाड ने एक गांव पर सिर्फ एक ही हफ्ते में 3 केमिकल बॉम्ब्स गिराए। ये केमिकल बॉम्ब्स जो बैंड है आज की तारीख में। इतने हैवी बॉम्बिंग्स करने के बावजूद अपने शिया एलाई की मदद करने के लिए ईरान ने भी इस वॉर में एंट्री मार ली। ईरान ने, जाहिर सी बात है, उसी के इशारे पर चलने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को असाड गवर्नमेंट की मदद करने के लिए सीरिया में डिप्लॉय कर दिया। Oh मतलब अब इस वॉर में 4 पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन अप्रैल 2013 में अल कायदा इराक के लीडर अबू बकर अल बगदादी ने डिसाइड कर लिया कि वो अब अफगान बेस्ड अल कायदा लीडरशिप की बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए अल बगदादी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब AQI नहीं बल्कि आइसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक है, और वो इस इस्लामिक स्टेट का नया खलीफ है। इसके बाद आइसिस ने, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, इतने सारे इराकी और सीरियन एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया। This whole situation is just, it gets so messy and so complicated. मतलब मैक्रो पिक्चर से अगर देखे तो अब सीरिया पर कंट्रोल 3 पार्टीज चाहती थी, असाड वर्सेस फ्री सीरियन आर्मी वर्सेस आइसिस। और जब आइसिस पिक्चर में आई तो 2014 में US ने भी ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व लॉन्च करके इस वॉर में आइसिस को खत्म करने के लिए एंट्री ली। Yeah, I knew America was gonna come into this at some point. Oh, gross. फिर US आया तो असाड ने रशिया को इनवाइट कर दिया, जिसके बाद रशियन फोर्सेस भी आइसिस और FSA से लड़ने आ गई। मतलब एक एक करके आज अगर आप देखोगे तो इतनी सारी पार्टी सीरिया में वॉर लड़ रही है, मगर वहां के आम लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। अभी तक वहां पर 3.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है, पर जानते हो वेस्टर्न मीडिया इसे कवर क्यों नहीं करती? 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि सीरियन ऑयल से US को हर महीने $45 मिलियन के प्रॉफिट्स हो रहे। यस, वहां पर ट्रूप्स भेजकर USA, I know it's all about the money. God bless. That just in this video, in that context, it's so gross. सीरिया के ऑयल को कब्जा करना चाहता है। और वहीं पर रशिया की अगर हम बात करें तो इस वॉर को रशिया अपने वेपन्स के लिए एक टेस्ट ग्राउंड की तरह यूज कर रहा है। अब तक रशिया ने 600 वेपन्स। This may be true that Russia is using this for test grounds for its weapons, but don't be fooled where Russia doesn't want the oil as well. Russia wants the oil. Russia has natural gas, so imagine if Russia had a chokehold on natural gas and oil. Come on. सीरिया में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिए, पर सीरियन सिविल वॉर को कोई भी लाइमलाइट नहीं मिल रहा है जितना इजराइल पैलेस्टीन या फिर रशिया यूक्रेन वॉर को मिल रहा है। ये था इस रीजन का पहला वॉर जो चालू है। अब आते हैं नीचे साउथ में इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर की तरफ, जिसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये जंग की शुरुआत एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के वजह से हुई थी। यस, इसके पीछे ब्रिटिशर्स की एक्चुअली में एक काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। देखो 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां पर ऑटोमन एम्पायर को हराकर फ्रांस को सीरिया मिला था, वहीं पर सेम टाइम पर ब्रिटेन को पैलेस्टीन के एरियाज मिल गए थे। अब यहां पर ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। इस देश में ज्यूज बहुत ही कम संख्या में थे जिनको ब्रिटेन अपने साइड पर कर पाता था। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी जो So you're telling me out of all of this, Britain looked over there and said, "Yo, where are the Jews at? We want a relationship with the Jews." Is that what you're telling me right now? भी ऑटोमन एम्पायर के लिए ही काम करते थे। इनफैक्ट ऑटोमन कोर्ट में कई सालों तक पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ही मिनिस्टर्स थे। इसके लिए इस इलाके में ऑटोमन एम्पायर के प्रति बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग थी। तो अब जाहिर सी बात है, इतने नेशनलिस्ट लोगों में ब्रिटिश ज्यादा दिनों तक इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उस वक्त पूरे दुनिया में जायोनिज्म मूवमेंट चल रहा था।
जिसमें पूरे दुनिया के ज्यूज उनके लिए एक होमलैंड यानी कि देश की तलाश में थे। और जेरूसलम की जमीन को तो पहले से ही तीनों इब्राहिमिक रिलीजियंस पवित्र मानते थे। और बस ब्रिटेन ने इसी को मौका बना के चौका मार दिया। मतलब उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन अनाउंस करके ये बोल दिया कि हम ज्यूस को ना एक नया होमलैंड पैलेस्टीन में बना के देंगे। इससे वेस्ट That's exactly what they did. की दो They said, "Don't worry, we got you. We know you're good for the money." प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक ये कि अब वो पैलेस्टीन में डिवाइड एंड रूल आसानी से कर सकते थे, और दूसरा उनको यूरोप में उनके देश में खुद की कोई टेरिटरी को ज्यूस का होमलैंड बनाने के लिए कुर्बान नहीं करना पड़ता। और फिर क्या था, ब्रिटेन के इस डिक्लेरेशन के बाद से दुनिया भर के ज्यूस इजराइल की जमीन पर आने लग गए। फिर हॉलोकॉस्ट के बाद तो ऑलमोस्ट सारे ज्यूस यहां पर आकर बस गए, जिससे हुआ ये कि जो अरब्स पहले इस रीजन पर मेजॉरिटी में थे वो वहीं पर माइनॉरिटी बनने लग गए। अब 1945 के बाद क्या हुआ ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। 1947 में यूएन ने 2 स्टेट सॉल्यूशंस डिक्लेयर किए, एक इजराइल और दूसरा पैलेस्टाइन। 1948 में इजराइल ब्रिटेन से आजाद हुआ और अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया, जिसमें इन सारे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। और आप जानते ही हो आज तक ये वॉर चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सऊदी, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों ने इजराइल से सुलह कर ली है और अब वो इजराइल से नहीं लड़ रहे। And what's the worst thing about wars too? I think we can all agree about this. It's just the common people. It's people like me and you who are on YouTube, just trying to make the best for their own lives, trying to find a nice woman, have a nice family, and just live our lives, right? Or however you're trying to live it. But it's a government body. It's these bureaucrats, these politicians, the military leaders who are ultimately the ones who are pressing the buttons, destroying and killing the common people. Not even the people behind the scenes. Just front. It's never. You know what I mean? Are you guys picking up what I'm putting down? अब ऑब्वियसली हमने तो बस एक ऊपर से बात की, बट अगर इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड इशू को आपको डिटेल में समझना है ना, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप उसे ऊपर आई बटन दबाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। पर आज के तारीख में ना फिर भी इतने सारे देश इजराइल के साथ वॉर लड़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट की इस इंस्टेबिलिटी से इस रीजन में 60+ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी है। हाउतीज और हजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने तो देश के मेजॉरिटी पार्ट्स पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस सब में भी यूएस काफी हैवी प्रॉफिट्स मिंट कर रहा है। दिसंबर 2022 में यूएस के डिफेंस Notice how he put Biden there, not Trump. Okay, Biden. Biden bad. कंपनीज ने इजराइल में $200 मिलियन के वेपन्स बस एक महीने में बेच के कमाए। इनफैक्ट जब से इजराइल का वॉर शुरू हुआ है यूएस के We all know war is definitely the #1 money maker in all of the world. If you want to make some money, start a war, start selling weapons, डिफेंस सेक्टर के and then sell yourself the contracts to rebuild the area that you blew up. स्टॉक्स अपने पीक पर है। हाउ आयरॉनिक राइट, अपने आप को पीस के लिए इंचार्ज कहने वाला देश ही वेपन्स बेच के पैसे कमा रहा है और शायद कभी चाहता नहीं है कि वॉर्स एंड भी हो। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, लाइक ये इस वीडियो से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि वॉर एक कितना बड़ा इंडस्ट्री है, एक कितनी बड़ी इकोनॉमी है। अब एनीवे Yeah. बढ़ते हैं वीडियो में आगे। What's more, use the picture of Biden on there. Okay, I don't agree with Biden. In America, I didn't vote for him. अगर आप मैप में हल्का सा लेफ्ट की तरफ आओगे ना तो सरप्राइजिंगली I didn't vote for Kamala either. She spoke gypsy curses. I didn't want to be cursed. आपको अमेरिका के भी कई देश मिल जाएंगे जो भी रेड के शेड्स में मार्क्ड है। अब आई नो इस वॉर जोन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में तो आपने इतना सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि कोल्ड वॉर में यूएस ने कई सारे देशों को तबाह कर दिया, वहां पर सरकारें गिरा दी है। पर क्या आपको ये पता है कि यूएस खुद के ही देश में जिस ड्रग इन्फेस्टेशन yeah. से लड़ रहा है, Yeah, from the cartels and everything going on in South America. Yeah, but that's just because we have our own quote-unquote war on drugs. If we legalized drugs and grew them here and kind of had its own, sector that people can make money off of, it would be a lot less hostile over there in the South. उनके देश में जहां पर लोगों की हालत कुछ ऐसी है, LA. Yeah. इनफैक्ट पूरे अमेरिकाज में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ अमेरिका में जो ड्रग वॉर्स चल रहे हैं, ये सब कुछ खुद यूएस ने ही जन्म दिया है। यस, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की इनफेमस ड्रग प्रॉब्लम का क्रिएटर Yeah. खुद यूएस ही है। Yep, तो yep, बात yep. 1979 He's not wrong. He's 100%. 100%. यानी कि कोल्ड वॉर के समय की है। उस वक्त निकारागुआ
The Reagan administration, Reagan's wife, I think it's Nancy, I believe it was Nancy Reagan, come out and said that the number one problem in America is drugs and we got to protect the children. They were about protecting the children, they said, but no, they just wanted money. So they set up a problem and they found a solution. नाम के एक साउथ अमेरिकन देश में जो गवर्नमेंट बनी थी, वो गवर्नमेंट उस वक्त यूएसएसआर द्वारा बैक्ड थी. अब जाहिर है यूएस इज वेरी इनसिक्योर अबाउट कम्युनिज्म. सो इससे यूएस डर गया कि इसके बाद पूरे साउथ अमेरिका में कम्युनिज्म या सोशलिज्म फैल ना जाए, और इसीलिए यूएस ने उस देश के एक रिबेल ग्रुप कॉन्ट्रा को सीक्रेटली फंडिंग और हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया. लेकिन 1984 में जब यूएस की पार्लियामेंट को यह पता चला, उन्होंने इस फंडिंग को तुरंत ऑफिशियली बंद कर दिया. बट इसके बाद यूएस एक्चुअली में रुका नहीं. सीआईए ने एक दूसरा रास्ता निकाला, एक इलीगल अनऑफिशियल तरीके से फंड सप्लाई करने का. दरअसल 1996 की यह बात है जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट गैरी वेब ने काफी सीक्रेटिव सीआईए कॉन्ट्रा क्रैक कोकेन कंट्रोवर्सी एक्सपोज किया. और तभी जाकर This is where America, like, this is during the Clinton administration, was like buying loads of cocaine, and you had Rick Ross, the original cocaine cowboy, who would smuggle, and he was making millions of dollars every week running drug money from the American government. पूरी दुनिया के आंखों के सामने यूएस के ये कारनामे भी आए थे. एक्चुअली में तब सीआईए ने कॉन्ट्रास का कांटेक्ट न्यूयॉर्क में मौजूद क्रिमिनल गैंग से करवा दिया था, और फिर उन्होंने कॉन्ट्रास को ये बोला कि कोलंबिया, जहां पर कोकेन उगता है, वहां से ड्रग लाकर इन गैंग्स को जाकर बेचो, और इससे जो पैसा आएगा उसको खुद के देश की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए. And Freeway Ricky Ross was the guy who had relationships with these guys down here and distributed it to the CIA. And once the CIA got it, I mean, they were the ones kind of who had other relationships with the people, obviously, up in New York, but insane. बेसिकली पूरे दुनिया पर अपना वर्चस्व बिठाने की लालच में यूएस जैसे एक देश को इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने खुद ही अपने ही कॉन्टिनेंट को एक ड्रग एपिडेमिक में ढकेल दिया. कॉन्टिनेंट क्या, उसके खुद के देश में ही इसके बाद. And don't even get me started on our pharmaceutical industry. से ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग रिलेटेड डेथ्स इतनी बढ़ चुकी है कि ये प्रॉब्लम आज तक कम ही नहीं हो रही, हर साल बढ़ते ही जा रही है. बेसिकली यूएस की इस एक गलती ने पूरे साउथ अमेरिका को दुनिया का कोक प्रोडक्शन हब बना दिया, और इस हब को मैनेज करती है अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स जो मेजरली इन 3 देशों में ही बेस्ड है. अब इनमें से कोलंबिया में कोका प्लांट की खेती होती है, जिसे वहीं पर लैब्स में प्रोसेस करके उनसे कोक बनाया जाता है. कोलंबिया में इस काम की शुरुआत तो मेडेलिन और And just to be clear, guys, when he's talking coke, he's not talking about Coca-Cola. कैली नाम के ड्रग कार्टल्स ने किया था. जो इनफेमस ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी मेडेलिन कार्टल से ही था. लेकिन आज यहाँ पर अलग अलग गैंग्स आ चुके हैं. ये गैंग्स ड्रग को प्रोड्यूस और प्रोसेस करके इनको मैक्सिकन और ब्राजीलियन गैंग्स को बेचते हैं, जो दोनों भी मेजर सप्लायर्स हैं, जिसमें मैक्सिको यूएस मार्केट को केटर करता है और ब्राजील पूरे दुनिया भर में इस ड्रग को सप्लाई करता है. मैक्सिको की अगर बात करें तो यहाँ पर आज भी सिनालोआ कार्टल और गल्फ कार्टल मेजर प्लेयर्स हैं. ये लोग मेजरली यूएस में ड्रग स्मगलिंग करते हैं. और वहीं ब्राजीलियन गैंग्स जैसे प्राइमेरो कमांडो द कैपिटल और ब्राजीलियन कमांडो वर्मेलो, ये वर्ल्ड वाइड ड्रग सप्लाई करते हैं. अब इन सारे साउथ अमेरिकन गैंग्स का कनेक्शन है दुनिया के मोस्ट ऑफ द डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप्स, आईसिस, हिजबुल्लाह, अल शबाब, अल कायदा, इस्लामिक मागरेब और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस जैसे टेररिस्ट के साथ, जो इन गैंग से ड्रग्स लेकर पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में बेचते हैं, और उसके बाद बदले में इन गैंग्स को मॉडर्न हथियार या फिर पैसे देते हैं. बेसिकली कुछ इस कदर ये पूरा ड्रग सप्लाई का चेन काम करता है. आज के तारीख में ये ड्रग ट्रेड साउथ अमेरिका में इतना डेडली हो चुका है कि आप सुनोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि हमारे पंजाब की हालत इससे 1000 टाइम्स बेटर है. इन देशों में तो हम And in all fairness, with our new administration, with Trump's administration coming in, the guy Tom Holland has said that he's going to use the full force of the military government, or not the government, the military, the American military, to go after these gangs because they've killed enough Americans, which is badass. हमेशा कार्टल वर्सेस गवर्नमेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं. ब्राजील में हर साल कम से कम ऐसे 2000 अटैक्स होते हैं. ये वॉर इतना बड़ा हो चुका है कि सिर्फ इन गैंग से लड़ने के लिए हर साल ब्राजीलियन गवर्नमेंट $10 बिलियन खर्च करती है. लेकिन इसके बावजूद इस पूरे जंग में हर हफ्ते
करीब 40 ब्राजीलियन लोगों की जाने जाती है। मेक्सिको की अगर बात करें तो वो तो पिछले साल दुनिया का मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर सिटीजन्स बन ही गया था। उस Wow. एक साल में ही वहां पर 5000 से ज्यादा गैंग अटैक्स हुए थे। और वहां की सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये गैंग्स सीधे पॉलिटिशियंस पर ही अटैक करते हैं। 2024 के इलेक्शंस में इन्होंने 30 कैंडिडेट्स को ही मार डाला था। आज तक मैं I mean, earlier this year, I think there was an election down in South America, and the newly elected president, within like a week of his time, had his head, literally his head, put on top of a car in the center of town square, and the gang was like, we run this, not him. मेक्सिको में इस ड्रग वॉर की वजह से 4,30,000 डेथ्स हो चुके हैं और कोलंबिया तो पूरे साउथ अमेरिका में इनवॉलेंट डेथ्स को लेकर 3rd रैंक पर है। वहां पर लोग खेती से ज्यादा कोका उगाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा पर इस देश के आधी जमीन पर कोका की खेती होती है। सो जस्ट इमेजिन क्या कंडीशन हो गई है अमेरिकास की आज। इसके अलावा भी मैप में और भी कई देश रेड में मार्क्ड है। सो एशिया और यूरोप में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार का 2021 का मिलिट्री कू, जिसमें 2.5 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिम्स को घर छोड़कर भागना पड़ा था। और यूरोप का रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें अब तक करीब 8 लाख रशियन सोल्जर्स और करीब 80,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं। बट क्योंकि मैंने रशिया यूक्रेन मुद्दे पर ऑलरेडी This is what I was talking about. Mexico mayor's decapitated head was found on his car only 6 days after taking office. This is out in Mexico, back in early October. This was like super recent. डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, इसीलिए मैं उसे डेप्थ में कवर नहीं करूंगा। अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर आई बटन दबाकर क्लिक कर सकते हो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। मैंने आज मोस्टली वही वॉर्स कवर किए हैं जिन्हें ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया उतना कवर नहीं करती। ये सारे वॉर्स सीक्रेटली चलते रहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में वेस्ट इज नॉट बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा। इनफैक्ट ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि यूएस पूरी दुनिया में वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू ही अपनी हेजीमनी बढ़ाते रहता है। बट वहीं पर He's kind of right. I'm not gonna lie. And as an American, patriot, somebody who loves America, I love America and the American people. A lot, like, I feel like the American government needs to take a shift instead of focusing on external wars, focusing on fixing what's going on internal, because we've made a mess of ourselves these past, what feels like 4 years, but it's really been since like Obama and Clinton, since like 1996. We've been on this slippery slope down. When Trump came into office, we had like a tick up, and then we went back down, and now he's back in office. And hopefully, with the people being as frustrated as we are, we have the energy and the momentum behind us to really change and be an impact of good for the world. अपनी एक क्लीन इमेज मेंटेन And lead by example. करने के लिए वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का फरिश्ता बन जाता है और एक पॉजिटिव पीआर इमेज बनाकर रखता है ताकि ग्लोबल लेवल पर यूएस की रेपुटेशन हमेशा मेंटेन रहे। And those who understand that democracy is essential. The power of democracy and how democracies can be strengthened. Of American democracy. And in fact, Ugh, that's what gypsy curses. distinguishes democracy. अब यूएस ने कैसे अंडर द मास्क ऑफ इट्स पॉजिटिव पीआर कई सारे देशों को तबाह किया है। वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलाई है। वहां पर वॉर्स के वजह से लाखों लोगों की जाने। And I can understand why people see guys like Elon and think he's a part of the deep state. And I trust me when I say that he's not, right? There is a large group of people within the United States who understand that we have been behind a lot of the evil and the corruption in the world, and we don't want to be a part of it. जा चुकी है और आज भी जा रही है। कैसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आज तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है और कैसे ये सब यूएस की करामत है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है जो आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक इट आउट। I will. यहाँ पर आई बटन दबाकर आप उसे चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मोस्टली हमें यही चीज समझ में आती है। Yeah, no, this is kind of like a surface level understanding of like what's going on around the world. For me, it was much more going on in Africa. I didn't realize that the whole continent of Africa was under siege and under war. I kind of knew it was going on in the Middle East, and I'm definitely very caught up on what's going on in South America with not so much a war, but this drug war that we have going on and these business deals that are being made by these cartels that are acting as like pseudo governments trying to govern and maintain the land there, and they're not doing a very good job in terms of giving the people a lot of opportunities to succeed and better the community themselves. And ultimately, what's more, in Africa, I think all around the world, that's what we're gonna have to see is either people with tons and tons of money, like Elon's, the Jeff Bezos of the world's,
people with tons and tons of money go in and be able to set up basically a city, buy businesses within the city, give the people in that city, the community, those jobs, right? And then give them a way to buy it from the person who set it up, and then have some kind of stream revenue for that person. Always take a little bit of money as, you know, like a tax or some type of like some type of royalty, and then allow that community to thrive. That way the money stays in the community. You know what I'm saying? But if you guys like the way the words are coming out my mouth, if you're picking up what I'm putting down, if you're agreeing with some of the things I said, like the video, share. If you disagree with any of it, please let me know down below. It's the whole reason why I started this channel, so I can communicate with people from around the world and get different perspectives, right? Just because you have a perspective and I have a perspective doesn't mean that yours is right or that mine's right. It's just perspective. And ultimately, at the end of the day, it's not about being right or wrong. It's about being effective, efficient, and always getting better. So with that said, I challenge your ass, make somebody laugh today, because there's enough hate, there's enough vitriol in the world. So spread love, not anger. Make somebody laugh, not cry, unless it's tears of joy. And with that said, I'll catch you in the next one. Peace.